Hi, good morning. Good morning, all. I hope I'm audible and visible to everyone. I just had to change my setting because there's a lot of noise in our drawing room. So I'm back in my bedroom. Okay, so let's talk about certain topics today. So for the next week, what I've planned is that I'll probably show you how to go about writing a paper, right? Any paper that you recommend, I will really show how you can solve it, right? Backlight. Is it better now? No? Hello? No, not working. Wait. Working now? Okay, great, great. Thanks. Yeah, it's very helpful that way. So that means I'll have to keep on checking whether or not I'm audible every 5 to 10 minutes. So I'll just do that. That's fine. Okay. So I believe that आप लोग अब काफी बोर हो गए होंगे because I've only been talking about CPC and SRA and all of those civil law subjects. So I thought, why not let's talk about criminal law, and let me also give you a brief idea of how these classes are going to look like from now onwards, because I realize कि 3 महीने में the next 3 months that I have with you, that can really help us cover almost all of the topics that are important from the mains perspective, right? So from the mains perspective, I've been thinking of covering the following topics. uh, I've prepared actually a list, or a really long list of topics where which I can deal with. And I won't be really teaching you those topics, but as you know, when I'm discussing those topics, I always discuss the key points and I always discuss what are the relevant parts of it. So therefore, अगर आपने वो पढ़ा नहीं भी हुआ है तो भी आप उसको देख के एक बार समझ सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया, और मतलब यू रियलाइज कि मतलब देयर ओनली एक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, राइट? तो अगर आपने वो वाले क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका उनमें उनको क्लियर करने का तरीका, मतलब आप जब भी अब पेपर देने जाएंगे ना अपना मेंस, तो आप बोलेंगे अरे ये तो हमने क्वेश्चन किया हुआ है. सो दैट इज माय इंटेंशन विद दीस क्लासेस गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ. और हम अब क्या करने वाले हैं, तो फॉर लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू, राइट? हाँ, आई गिव यू द टॉपिक लिस्ट प्रॉपर्ली. मतलब आज से क्या होगा, यू शुड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. आई जस्ट let you know what my code is, right? uh, and let's do another thing. Why don't I show you the list also of things that I plan on doing, right? uh, can I share the list? I think so. The telegram group channel is I'll just put it up in the chat. This is not mine, someone else has created it for me. So हाँ, हिंदी हिंदी में ही प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट. मतलब कम से कम टॉपिक के नाम तो जो हैं वो तो आप इंग्लिश में भी ले ही सकते हैं. Oh, shit. आचमन शेखर. अगर आप आचमन शेखर करेंगे, हाँ, थैंक यू हरीफ, थैंक यू, दैट इज एग्जैक्टली इट. तो उसमें आई विल बी शेयरिंग द वीकली लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आई विल बी कवरिंग दैट डे, right? So Monday to Friday will be 5 classes where I will discuss the 5 important topics. Then on Saturday and Sunday there will be one. Okay, let me just yeah. I'll ensure कि जितना भी मतलब I'm doing 2 things now. I'm doing one. I'll just show it to you on the screen so that it's easier for you also. Share my screen, entire screen is being shared. रानी मैं हिंदी जानता हूँ, लेकिन चलिए, मतलब आपको अब इसकी दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं आगे से. आई विल इंश्योर दैट, राइट? तो स्क्रीन मिररिंग. Oh wait. Entire screen share. Okay, great. I think it should be visible now, right? तो अब I'll just tell you a brief idea. I'll just give you a brief idea of कैसी लगने वाली हैं क्लासेस, so that आपको भी पता हो और मुझे भी तैयारी करने में आसानी हो,
राइट. इससे एक दो दिन पहले आई अपोलोजाइज, मैं ज्यादा अच्छी तरह से क्लासेस ले नहीं पाया. द पोल्यूशन प्रॉब्लम रियली गॉट इंटेंस, एंड मेरा मतलब आपको आवाज से भी पता चल रहा होगा कि आई एम नॉट डूइंग टू वेल विद द चेंजिंग वेदर. बट चलिए, अब हैविंग सेड दैट, तो आई विल बी टेकिंग अराउंड 10 hours of sessions every week, right? तो 10 hours of session में Monday to Friday it's going to be 8 a.m. to 9:15 a.m. These classes, as this one today, are going to deal with uh, the most important law topics and uh, answer writing, sorry, related answer writing. ठीक है, तो इन सेशन से मेरा फिर क्या रहेगा, नॉट जस्ट क्योंकि मतलब there are only so many tricks of answer writing that I can tell you, right? There are only so many principles of answer writing that I can tell you. More important part is I show you how these principles are actually being implemented. तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, by giving you examples of, thank you, या बाहर रख देंगे, thank you. So by showing you examples of how we can actually put theory into practice, मैं आपको ये कैसे करके दिखाऊंगा. जैसे मान लीजिए, one of the topics that I really want to cover with you is minority in contracts. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने माइनॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स किया होगा, बिकॉज आई ऑल्सो नो इट, राइट? तो उसमें आपने किया होगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. Lekin, what if I tell you there are 5 more important cases? Like there are in total 5 cases that deal with this, and you need to know of all 5 to really understand the entire gamut of minority in contracts, right? So by giving you that example, तो उससे दो चीजें होंगी, मतलब we'll try to kill 2 birds with 1 stone. कि एक तो आपका लॉ टॉपिक भी क्लियर हो जाए, you have the material to write on that particular law topic, और दूसरा, when I'm writing that answer, when I'm discussing that question with you, आपको ये भी समझ में आए कि आंसर एक्चुअली करना कैसे है. ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे विल बी दीज. सैटरडे एंड संडे आई हैव रिजर्व 2 hours, 2.5 hours every day. तो उसमें क्या है कि ऑन द प्लेटफॉर्म आई विल बी डिस्कसिंग one language paper. ठीक है, that can be essay writing, essay translation, pressy, etc. इनफैक्ट प्रेसी में आपकी मैं काफी हेल्प कर सकता हूँ. प्रेसी का 2-3 रूल्स होते हैं जो अगर आपको समझ में आ जाए, और ट्रांसलेशन के 2-3 रूल्स हैं जो आपको समझ में आ जाए, तो आप काफी अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर पाते हैं. तो दिस वुड बी 1 hour in on either of these days. Sorry. And another hour, I think that I will either solve PYQs, take doubts, or one more thing, take doubts, or this is all on the, this can be on Zoom sessions or something, so that it's more interactive, right? Solve doubts, solve PYQs, take doubts, or discuss strategy, right? Just I understand that a lot of exams are now coming up, right? So matlab, this is the first time that I won't be preparing for the new notifications that are coming out, but at the same time, this will also give me the chance to really just give you my strategy that I would have made for myself. So I will discuss my strategy with you, how I would have approached these papers, and I hope that is helpful for you too. And 2 hours or 2 sessions of 1 hour each on YouTube. This will largely be
a iteration of the important law topics that I discuss in that week, right? So because that allows me to really focus on these particular law topics. So isme for you, I will let you know on the Telegram group ki if that particular session will be helpful for you or not. If I'm discussing something new, I will definitely ask you to join. Otherwise, I will say कि यार आपने तो वो attend किया ही हुआ है, तो you don't really need to join, right? So be assured, this will I will ensure that this whole gamut and this whole 10 hours of sessions every week really help you, right? My objective is to give you as much as I can in the next 3 months. Uske baad I've also decided to take just 1 month off myself before joining. So that is what my plan for now is, and in the next 3 months I assure you कि आपके मतलब within 3 months कितने टॉपिक हो जाएंगे? 4 into 5 20 in a month, 60 to 70 topics I will ensure कि आपके cover हो जाए, right? So we will try to cover 60 to 70 topics and strategy, language practice. ठीक है, तो that is my draft plan. अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है या कोई मतलब कंसर्न है तो आप प्लीज मुझे बताइए, और मैं आपको फिर मतलब वी कैन डिस्कस कि हम उसमें फिर अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो आप अगर वो बता दीजिए तो उसके बाद we'll start with today's session. Any questions, any doubts? You can raise your hand or you can put it up in the chat. समझ नहीं आया आपने क्या कहा? अच्छा, मैं अभी ये फिर से वो शेयर करूंगा आपके साथ स्क्रीन. मैंने उसमें बताया है कि कैसे एक हफ्ते में 10 घंटे की सेशन लूंगा और उसमें कैसे मतलब क्या-क्या चीजें कवर होंगी. कवर करने के लिए मैंने मोस्ट ऑफ दीज क्लासेस सिमरन विल बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. मतलब इधर वाला ही, मतलब पहले वो कह रहे थे कि यू शुड गिव द क्लासेस ओनली टू पीपल हु पर्टिकुलरली कवर्ड मोस्ट सिलेबस, बट मैंने बोला कि नहीं, सबको ही ये क्लासेस अवेलेबल करवानी चाहिए, क्योंकि मतलब आई एम नॉट जस्ट डीलिंग विद आंसर राइटिंग, आई एम आल्सो टेलिंग यू कि कैसे मतलब टॉपिक्स को आप समझें, टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टॉपिक्स की इन डेप्थ अगर आप परख करेंगे तो आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं. अगले मंडे से हम क्या करेंगे, मतलब दिस वीक ओनली आई विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ द 5 टॉपिक्स दैट आई विल बी डीलिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, राइट? हाँ, I will show you my answer also. So from Monday to Friday, I'll tell you the list of topics that I'll be discussing, right? तो it will be very helpful. It will be even more helpful अगर वो आप थोड़ा खुद से भी पढ़ के देखें वो वाला टॉपिक before I really come, so that आपको ये पता चले कि आप क्या चीजें मिस कर रहे हैं जिसकी तरफ मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ. ठीक है, तो that would become even more helpful for you because you would find out where the gaps इन योर प्रिपरेशन आर और आप कहाँ कहाँ पे सप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? सबका बताएंगे, सबका कवर करेंगे. एनी डाउट्स दैट यू हैव, इफ यू राइट आंसर्स. अच्छा, तो इवैल्यूएशन का यू विल हैव टू आस्क समवन एल्स. आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर इवैल्यूएशन, राइट? आई एम जस्ट हियर फॉर द सेशंस एसेंशियली. तो मतलब यू शुड आस्क योर फैकल्टी और कोऑर्डिनेटर्स, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से इवैल्यूएशन होनी चाहिए. आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप आंसर राइटिंग शुरू कीजिए, लेकिन आपको मेरे सेशन में आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है. आपको अभी तो एक समझ और एक मतलब दिमाग में एक ड्राफ्ट बनाने की जरूरत है कि अगर ऐसी चीजें आएंगी तो हम उनको कैसे आंसर करेंगे. ठीक है, और ट्रस्ट मी, मतलब ये सारे जो टॉपिक्स आएंगे अगर हम 60 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ना, तो 20-25 टॉपिक्स आपके मेंस में पक्का आएंगे. किसी भी मेंस में आप कोई भी मेंस उठा के देख लीजिएगा, उसमें से 20 से 25 टॉपिक्स इन्हीं में से आएंगे. ठीक है, तो आई थिंक आई शुड नॉट ड्रिंक इट बिकॉज मेरा गला और ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, ये पी भी रहा हूँ. तो आई एम नॉट ड्रिंक इट, राइट? हिंदी का मैं एम ट्राइंग कॉन्स्टेंटली टू इंक्रीज, और मैं वो उसमें बात करने लग भी गया हूँ, मुझे लगता है. मतलब आई बिकम अ लॉट मोर कंफर्टेबल स्विचिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश. तो वो एक ऐसा चेंज है जो आपको और ज्यादा दिखता रहेगा फ्रॉम
through in the next classes. मैंने मतलब I think मैंने YouTube पे एक सेशन शेयर किया था जहाँ पे I spoke about preparation, right? The three phases of preparation. David and Sneha, you can have a look at it. It suggests कि आप 1.5 साल में आराम से कोई भी preparation कर सकते हैं alongside your college or alongside your LLM or alongside your job. So 1.5 साल से आपको ज्यादा लगना नहीं चाहिए. अगर आपको पूरा complete breakdown चाहिए तो वो सेशन में है. स्नेहा ओके हाँ तो बिल्कुल सही रहेगा आई थिंक मतलब 2026 इज नॉट दैट फार इट्स ओनली व्हाट 14 मंथ्स अवे तो आपके पास यू हैव जस्ट इनफ टाइम टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट चेंज क्या ये कि यू शुड नाउ स्टार्ट डीलिंग विद बोथ द न्यू क्रिमिनल लॉज एंड द ओल्ड क्रिमिनल लॉज राइट उसकी भी एक दिन वी विल डिस्कस ओके द फर्स्ट और द सेकंड स्ट्रेटजी सेशन दैट वील हैव would be on how to deal with the new laws राइट अगर आपने ऑलरेडी पुराने वाले लॉस किए हुए तो आप न्यू लॉस को अगर मैंने आज मतलब मुझे कोई कहे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यू लॉस को पढ़िए तो मैं कैसे पढ़ूंगा दैट आई विल शेयर विद यू है ना तो दैट वे इट विल बी होपफुली हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल इंश्योर कि आपका फंडास क्लियर हो जाए उस बात पे जस्ट वन सेकंड माय चार्ज इज रनिंग लो गिव मी वन सेकंड I'll just be back hi yes okay still audible right can you just send one yes okay great let's start then let's start with today's session right आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ do you want to talk about criminal law or civil law that is the first question that I'm going to ask you उसके बाद मतलब I have sessions prepared for both and then we'll take it forward okay criminal ठीक है let's discuss criminal law then right let me pull out a paper that I've actually given so that वो ज़्यादा अच्छा आइडिया लग सके okay so this is my criminal law paper from Haryana right, this is the one I gave so मैं इसमें से कोई आज क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेता हूँ ठीक है but how do I put this question on the screen is the question okay why not we discuss section 27 today it'll be fun बहुत टाइम हो गया मैंने भी ये क्रिमिनल लॉ से डील किया हुआ तो मतलब बहुत मजा आएगा मतलब पुरानी यादें ही ताजा होंगी मेरे लिए तो क्रिमिनल लॉ ग्रेट आ जाइए ठीक है लेट मी डिक्टेट द क्वेश्चन टू यू मैं लिख भी देता हूँ चलिए मैं लिख ही देता हूँ then we'll try to answer that right camera quality will improve but I'm not your bro right so chaliye I'll show you I'll discuss the question with you I can send a picture in chat how oh okay I got it I understood how to do it okay great let me just take a picture edit just crop how do I rotate yeah done just give me 1 second just bear with me till that time आप section 27 को please देखिए है ना section 27 of the evidence act को आप एक बार देखिए
This is in relation to the camera, in relation to the criminal laws. तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. Hmm, should have come by now. थैंक यू जिसने भी मुझे बताया कि ये आप पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं. थैंक यू, दैट्स रियली हेल्पफुल. मतलब दिस विल रियली इनहांस आवर सेशंस. अब तो मैं आपके साथ अपने आंसर्स भी आई कैन शेयर विद यू दैट वे, राइट? तो आई विल स्टार्ट डूइंग दैट आल्सो. मैं आपको अपने आंसर्स खुद के भी दिखाऊंगा. मैं आपको मतलब अपना हिंदी के आंसर तो ये दिखा के आपको ये बताऊंगा कि मतलब बहुत ज्यादा होप है, राइट? क्योंकि मेरे आंसर ज्यादा अच्छे होते नहीं थे हिंदी के, एटलीस्ट शुरू में. उसके बाद अच्छे होने भी लग गए थे. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस essentially. Load handout recent. Okay, great, great, great. तो ये तो हम अब से यूज करने लग जाएंगे, राइट? मैंने मतलब आई थिंक मैं रवि कुमार के नाम से आपके सामने आ रहूंगा. दैट इज जस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर्स नेम, जिसने मुझे अपनी आईडी दी है. तो दैट इज व्हाई. ओके, नो वरीज. मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन रियली इज, राइट? तो सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, डिस्कवरी स्टेटमेंट, राइट? चलिए, अब आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू. आई डिस्कस द क्वेश्चन आल्सो. जिसको नहीं दिख रहा, डोंट वरी अबाउट इट. आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ओके, सो रीड विद मी. इट says section 27 of the evidence act. दिस इज द क्वेश्चन. ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा. सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट. अभी पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. माइंड यू, दिस इज फॉर 10 मार्क्स. ओके, दिस इज 10 मार्क क्वेश्चन आउट ऑफ 200 मार्क्स. सो दैट मीन्स कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के कितना टाइम है? 9 मिनट, राइट? तो उसमें से 9 मिनट में से हम 1 मिनट स्पेंड करेंगे 1 minute ऑन अंडरस्टैंडिंग, 30 seconds ऑन थिंकिंग एंड 7.5 minutes ऑन राइटिंग. ठीक है, अब लेट्स सी द व्हाट द क्वेश्चन इज. 27 of the Evidence Act deals with discovery of a fact by a person in police custody. Discovery of fact, person in police custody. If the accused makes a statement and then leads the police to a place and produces some incriminating evidence or article, can such statement be treated as confessional statement? Confessional statement that leads to discovery of weapon of offense, and can it also be used discovery of item, and can it also be used against the offender? So those are the two things that this question asks us to do. Now, the first statement that it gives is, so this is the question, right? क्योंकि आप अगर जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको में आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन मार्क तो इधर है, राइट? नाउ लेट्स कम टू स्टेटमेंट 1. Statement 1 says, accused charged with murder states, I have murdered A with an axe. I have hidden the axe in my haystack. I will produce it. Statement 2, on the other hand, the accused states, I would produce the axe used for murder and I will also produce my bloodstained clothes. Right? Axe and bloodstained clothes.
तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. Statements and extent to which they may be used. You get it? So, now the question is कि हमने इसमें करना क्या क्या है, लिखना क्या क्या है. Let me just explain the question again to you. तो आप मतलब एक बार ये पढ़ते पढ़ते समझिए कि पहले तो उसने बताया कि सेक्शन 27 क्या करता है. सेक्शन 27 डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन पुलिस कस्टडी से डील करता है. ठीक है. अगर एक आदमी, एक व्यक्ति पुलिस को ऐसी कोई स्टेटमेंट देता है जिससे कोई नई फैक्ट पता चलता है, तो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी यूज, उसके अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. अदरवाइज जनरल रूल क्या कहता है कि सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट, बीएसए में इसका जो भी काउंटर पार्ट है आप उसको ध्यान में रखें. मुझे लगता है सेक्शन 21 ऑफ द बीएसए विल बी द काउंटर पार्ट ऑफ सेक्शन 25, बट चलिए बी दैट एज इट मे. सेक्शन 25 ये कहता है कि confession made to the police are not relevant, right? Confessions made to the police are not relevant. Confessions made in police custody are also not relevant until and unless made in the presence of a judicial magistrate, right? That is section 26. So 27 then is an exception to section 25 and 26, the general rules that exist to provide against self incrimination. अगर एक अक्यूज पुलिस को स्टेटमेंट कोई देता है और उस स्टेटमेंट से पुलिस को कोई नई चीज पता चलती है, तो दैट स्टेटमेंट बिकम्स रेलेवेंट एंड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट दैट पर्सन इन अ ट्रायल. ठीक है, दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. और ये प्रिंसिपल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल उन्होंने दिया हुआ है. दे हैव नॉट मेंशन्ड कि वो किस चीज की एक्सेप्शन है, क्या जनरल रूल है, बट अदरवाइज आपको ये पता चल रहा है कि एनी स्टेटमेंट दैट इज गिवन अंडर 27 इज एडमिसिबल and can be used by the police. Can such statement be treated as a confessional statement? Question ये है, can it be confessional? That is question number 1. Sorry. Second क्या है, can it also be used against the accused during trial? ये तो है इसका theoretical part, right? These are the two questions that need to be answered. So let me just ठीक है, ये वाले तो हमने क्वेश्चन करने theoretical आंसर. ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी एडमिसिबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ यूज का हमने करना है प्रैक्टिकल देके एक्सप्लेन. तो अब आप मुझे बताइए कि आप कितना ज्यादा टाइम दोनों चीजों पे स्पेंड करेंगे. मतलब अगर आप ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कई लोग ये भी भूल सकते हैं कि हमने पहली वाली चीज करनी है थ्योरेटिकल, या वो थ्योरेटिकल चीज पे इतना ज्यादा लिख देंगे कि प्रैक्टिकल लिखने के लिए उनके पास टाइम नहीं बचेगा. लेकिन जो मतलब एक्यूरेट स्ट्रेटजी है वो क्या करेगी, वो बोलेगी कि मेरे पास 10 पेजेस हैं, 7.5 मिनट्स है लिखने को, तो इसका मतलब मुझे इन पे मैं मैक्सिमम 2 पेज लिख सकता हूं. दैट इज समवेयर अराउंड 250 to 350 वर्ड्स पेन पे लिख सकता हूं, और मुझे ये जल्दी जल्दी लिखना है. ठीक है, तो अब अगर मैं इस सिचुएशन में होता, एटलीस्ट मैंने जो किया है इस पेपर में, इवन दो आई हैव नॉट सीन माय आंसर शीट्स येट, जब मैं देखूंगा तब मुझे और भी ज्यादा इंसाइट मिलेगी मैं कहाँ पे और क्या कुछ लिख सकता था. तो उसके बाद तो आई थिंक द सेशन विल बिकम इवन मोर हेल्पफुल, बिकॉज इवन दो आई कांट शो यू माय एक्चुअल पेपर्स, राइट, आई विल डिस्कस वेयर आई गॉटन मोर मार्क्स एंड वेयर आई गॉटन लेस मार्क्स फॉर श्योर, राइट.
तो इतना उस हिसाब से मैं अच्छा हूँ कि मैं मतलब आई एम विलिंग टू शेयर माय लाइक दीज थिंग्स विद यू। बट अब हमने जो हमारे पास 2 पेजेस हैं उसे हम आप सिंपल रखिए अपनी डिवीजन। आप अज्यूम कर लीजिए कि जो थ्योरेटिकल है वो भी 5 मार्कर है, इज अ 5 मार्कर, और जो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो भी एक 5 मार्कर है, राइट। हैविंग सेड दैट, अब आप मुझे बताइए कि आप इसमें क्या क्या चीजें लिखेंगे अगर आपने लिखनी हुई तो। वन ऑफ यू रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि आप इसमें क्या क्या लिखेंगे। Hmm, 23, sorry, 23 is the right provision. Is it not working? Okay, the video might be stuck. Let me check. What is happening today? I missed that. Hi, am I visible and audible? Can someone confirm? I'm not visible. Okay, Shri Prakash and Manpreet, why don't you? आपने अपने hand raise किए हैं. Please let me know what you would say to this. I'm letting Shri Prakash speak. Shri Prakash, आप आइए. Please answer दीजिए. Okay, let's try with Manpreet then. तो फर्स्टली तो सर क्वेश्चन की सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे जी और क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप 27 को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, सेक्शन नंबर 27 को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, फिर 27 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए जैसे आप मेन प्रोविजन से स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद जो उसके सराउंडिंग प्रोविजंस हैं जो नहीं यार, क्वेश्चन तो क्वेश्चन के हमें मनप्रीत हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम सबको पता है कि 27 क्या डील करता है। आपके पास क्वेश्चन है ना, है ना। आप मुझे बताइए कि जो आप थ्योरेटिकल पार्ट में 5 मार्क्स का आपने लिखना होगा, एक पेज लिखेंगे जो आप, उसमें आप क्या क्या चीजें लिखेंगे। सर पहले तो डिस्कवरी का मीनिंग लिख सकते हो, डिस्कवरी के टाइप्स लिख सकते हो, थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, आंसर को स्टार्ट करने के लिए। फिर आप 27 को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 27 मेन बॉडी हो जाएगी। फिर आप 27 का केस लिख सकते हो, कोई भी, जैसे कोई भी जो लैंडमार्क जजमेंट है, अभी तो मैं एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं, लैंडमार्क जजमेंट मैंने पढ़ा हुआ है। फिर आप उसके बाद केस को जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आप केस का आंसर मतलब केस को हल्का सा डिस्क्राइब कर सकते हो। थ्योरेटिकल से बात कर रहे हैं मनप्रीत, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने थ्योरेटिकल का क्वेश्चन 2 थे कि कैन इट बी कन्फेशनल एंड कैन इट बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल, ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। तो आप इनको 100 सर कन्फेशनल के लिए तो 25 में जाना पड़ेगा। अगर कन्फेशनल के हिसाब से जाए तो 25, पहले 25 लिखना पड़ेगा। 25 के बाद आप 26 से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस की स्टेटमेंट है तो वो तो एडमिसिबल होती नहीं है 25 से। एग्जैक्टली। और 26 में अगर उससे कोई वेपन या कुछ आ जाता है, मतलब आपको पुलिस वालों को मिल जाता है, तो वो तो जितना पार्ट वो है कन्फेशन का वो एडमिसिबल हो जाएगा 26 में।
जिससे मतलब किसी चीज की डिस्कवरी हो जाए, वहां तक का पार्ट आप इनविजिबल कर सकते हो। हम्म, ठीक है, मतलब मुझे आपका पॉइंट और समझ में आ गया। मैं भी अब डिस्कस करता हूँ अपना। एक जयपूर्णा भी वांट्स टू आंसर, तो आई लेट हर स्पीक एज वेल। थैंक यू मनप्रीत। That seems to be not working properly. Hi Jaypurna, can you hear me? हाय जयपूर्णा, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, यस प्लीज टेल मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये बोलना था, जैसे जो भी आप क्वेश्चन समझाते हैं तो वो क्वेश्चन पूरा मतलब सामने ब्लैक मतलब बोर्ड पर मुझे दिखे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बाद में रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। हाँ ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई पुट इट अप ऑन द स्क्रीन आल्सो। मैं मतलब अपने आईपैड से फोटो ले लूंगा, तो दैट वे इट्स इजियर फॉर मी टू जस्ट शो यू द पिक्चर, राइट? तो वो हम करने लग जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए, चलिए, आपने आंसर नहीं किया, लेट मी आंसर इट देन। आई विल जस्ट थैंक यू जयपूर्णा, आई विल डेफिनेटली टेक दैट इनटू और सर कंसीडरेशन, पूरा राइट? आंसर जैसे एक बार हमें लास्ट में उसका आंसर पूरा लिख कर जैसे बताएं तो वो हम लोगों को जैसे समझने में अच्छा होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। Okay. Uh, let's get back to my internet not working properly. Okay, never mind. चलिए, मैं आपको अपनी अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड, मुझे चैट भी पढ़ने दीजिए, उसमें कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स थे जी। Provision, case law, video stuck, not visible, audible, audible but not visible. Okay, I'm audible. Okay, great. So अब let me share my, I'll just switch off my video. I think उससे प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, है ना? That way आप मेरी सिर्फ स्क्रीन पे फोकस कर पाएंगे। तो या मनप्रीत बहुत अच्छा वो किया। हाँ सॉरी स्नेहा, मतलब ब्रेक हो रही है क्लास, आई नो। आई होप मेरी ऑडियो नहीं ब्रेक हो रही, और अब जो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा वो आपको दिखती रहेगी, तो वो सही हो जाएगा, है ना? ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जस्ट प्लीज वंस कंफर्म कि आपको मेरा आईपैड दिख रहा है। ओके, थैंक यू। या लेट्स स्टार्ट। तो मनप्रीत ने बहुत अच्छा आंसर दिया। मनप्रीत के आंसर ने एक और भी चीज दिखाई कि ही अंडरस्टैंड्स व्हाट द एसेंशियल लिंकेजेस आर, क्या क्या मतलब है, कैसे मतलब है। लेकिन जो मनप्रीत के आंसर में एक मुझे कमी लगी, मनप्रीत, दिस इज नथिंग बट लव फॉर यू, राइट? कमी ये है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं था। मतलब आपने बोला हम एक केस लॉ डाल देंगे, हम एक डॉक्ट्रिन डाल देंगे, हम सेक्शन 25 की बात करेंगे, हम सेक्शन 26 की बात भी कर सकते हैं, हम 27 का मीनिंग देंगे, हम एक्स वाई जेड चीजें सो ऑन एंड सो फॉर्थ करेंगे, राइट? बट एज आई मेंशन बिफोर, दिस इज अ 5 मार्कर। ये थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, उसमें से प्रैक्टिकल भी हमें अप्लाई करके दिखाना है कि कैसे अप्लाई होगा, कहाँ पे अप्लाई होगा। तो द थ्योरेटिकल पार्ट दैट मींस इज 5 मार्कर, राइट? 5 मार्कर का क्या मतलब हुआ? 100 से 150 वर्ड से ऊपर आपके आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? एक पेज से ऊपर का ये आंसर नहीं हो सकता। तो जब एक पेज आ जाएगा ना, तो अगर आप ये सारी चीजें लिखना चाहेंगे जो आप
आपका मन करेगा, राइट? ये सबका मन करता है कि यार इस पे तो मुझे केस आता है, जैसे सबने अग्नू नगीसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार लिख दिया, राइट? तो सबका मन करेगा कि यार हम भी नाम लिख कर आए, यार हम भी बताकर आए एग्जामिनर को कि हमें काफी कुछ आता है। लेकिन अगर आपने इस पे 100 से 150 वर्ड से ज्यादा लिखे तो आपका टाइम बाकी के क्वेश्चन में इट विल ईट इनटू इट। और एग्जामिनर जो आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप उसको वो आंसर कीजिए। अब मैं जैसे दिखा दूं 5 मार्कर के लिए, दैट इज राइट। 5 मार्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि सेक्शन 27 का मतलब क्या है। सेक्शन 27 की जो अंडरलाइन डॉक्ट्रिन है वो ये है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी आपने चीज कही है, ठीक है, उसको जो बाद में उसके चीजें हो रही हैं वो कंफर्म कर देती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने बोला कि जो HDFC का स्टॉक है वो 50% से इंक्रीज करेगा विद इन 1 ईयर। ये एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक एनालिस्ट हो सकता है। कह रहा है कि जो HDFC का स्टॉक है ना वो 50% से इंक्रीज करेगा इन दिस ईयर। तो अब मैं तो यार बड़ा स्केप्टिकल हूं, मुझे लग रहा है कि यार इसकी बात कैसे मान ली जाए, है ना, इस पे क्या भरोसा। लेकिन 1 साल बाद स्टॉक एक्चुअली 50% बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसने एस्ट्रोलॉजर ने बात बोली या स्टॉक एनालिस्ट ने जो बात बोली वो कंफर्म हो गई बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। दिस डॉक्ट्रिन should figure in all your answers of 27, right? Confirm हो गई by subsequent event. Similarly, for section 27 how this applies is, A कहता है कि मैंने अपना चाकू, अपना गन छुपाई है X के घर में, ठीक है। पुलिस उधर जाती है, finds out the gun, ठीक है। तो अब जो A ने स्टेटमेंट बनाई that becomes relevant under section 27, राइट। आप एक और चीज नोटिस करिएगा, क्वेश्चन था एडमिसिबिलिटी का, ठीक है। सेक्शन 27, सेक्शन 26, सेक्शन 25 ऑल डील विद रेलेवेंसी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमें रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का जो रिलेशन है वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा? कहने को तो की जा सकती है ये बात भी, लेकिन बिकॉज आई मेंशन बिफोर, जैसे मनप्रीत ने आंसर दिया था, हमें 100 से 150 मार्क्स के 150 वर्ड्स के अंदर इसको पूरा करना है। तो अगर यही क्वेश्चन होता 20 मार्क्स का, राइट, या सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा होता तो हम बताते कि यार कि एग्जामिनर को बताते कि क्या रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का रिलेशन है और क्यों सेक्शन 26 और सेक्शन 27 में स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड रेलेवेंट और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है एडमिसिबिलिटी पे। चलिए अभी क्योंकि दिस इज अ 5 मार्कर, तो वी फर्स्ट मेंशन दिस डॉक्ट्रिन एंड से, अब इस डॉक्ट्रिन को सेक्शन 27 में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस को दी जा रही है
वो अनट्रस्टवर्दी है। ठीक है, अनट्रस्टवर्दी है वो वाली स्टेटमेंट। ये आपको कहां से मिलता है? सेक्शन 25 IEA, 26 ऑल्सो, प्लस सेक्शन 162 CRPC। बोथ ऑफ दीज प्रोविजंस मेक क्लियर कि जो भी स्टेटमेंट आप पुलिस वालों को दे रहे हैं वो अनट्रस्टवर्दी है। एंड दिस देन इमर्जेस आउट ऑफ आर्टिकल 20 एक्चुअली, अगेन सेल्फ इंक्रिमिनेशन 23। सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली प्रोविजन है ये, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बी दैट एज इट मे। तो आपने बात बोली कि दिस डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट्स बिकॉज स्टेटमेंट्स मेड टू द पुलिस एज अ जनरल रूल आर अनट्रस्टवर्दी, right? But when the statement is such that it has been confirmed by subsequent events, then that statement becomes relevant. तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। नो केस लॉ डिस्कस, नथिंग रियली स्पोकन अबाउट। हमने क्या बोला? हमने बोला सेक्शन 27 of the Indian Evidence Act is an exception to the general principle laid down by section 25 and section 26. Exception to 25, 20, ये आप लिख लीजिए अब। Exception to 25, 26. It is based on doctrine of confirmation by subsequent events, right? It exists because usually statements given to the police are untrustworthy, but because something is discovered, in pursuance of those statements, as a result of these statements, these statements become relevant. इसका रिलेशन मैं बताऊं किसके साथ है? सेक्शन 112 के साथ। कैसे? I'll let you know. Discovered as a result of these statements, they become relevant. अगर आपको याद होगा, सेक्शन 112 of the IEA deals with the conclusive proof. बर्थ ड्यूरिंग द मैरिज को वो कहता है कंक्लूसिव प्रूफ है। लेकिन एट द सेम टाइम अब इतनी ज्यादा केसेस है, इतनी ज्यादा जूरिस्प्रूडेंस है व्हिच क्लियरली प्रोवाइड्स कि अगर डीएनए एविडेंस है आपके पास, तो डीएनए एविडेंस विल ओवरराइड द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। डीएनए एविडेंस इज बेटर प्रूफ। अब डीएनए एविडेंस क्यों है? क्योंकि दैट इज आल्सो कंफर्मिंग समथिंग। अगर कोर्ट कोई फैक्ट पता कर सकता है तो फैक्ट जानना चाहेगा। अगर उस फैक्ट को बोल्स्टर करने, अगर उस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ एविडेंस डाल रहे हैं, कुछ ऐसा जरिया है जिससे वो एविडेंस सपोर्ट हो रही है, तो उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। इन दिस केस जो नॉर्मल आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं पुलिस को, वो कोर्ट नहीं मानता, क्योंकि पुलिस अपने मन से कुछ भी आपके मुंह में डाल सकती है। ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी स्टेटमेंट, वो कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरे पास राधेश्याम आया और उसने मुझे XYZ चीजें बोली, उसने बोला कि मैंने ही मोहन का कत्ल किया है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है अगर राधेश्याम ने ना भी दी हो तो भी पुलिस वाले रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर पुलिस को ये नहीं पता कि मान लीजिए जिस चाकू से मोहन का कत्ल हुआ है वो कहाँ पे है चाकू, और राधेश्याम पुलिस को बताता है कि ये चाकू इधर है, तो पुलिस एक तो इस चीज से कुछ डिस्कवरी कर रही है, और वो डिस्कवरी जो ऐसी बात की है जो उसको पहले पता नहीं थी। तो दैट स्टेटमेंट कि ये चाकू इधर है, दैट बिकम्स रेलेवेंट बिकॉज इट हैज बीन कंफर्म्ड बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। इसको आप एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें एक्चुअल आंसर के पास भी अब जाना है। तो जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था that we'd been asked, क्या confessional part of the statement can be used? Can such statement be treated as a confessional statement? If discovery made
can statement be used as confessional? ये तो है पहला स्टेटमेंट. इसका आंसर है प्लेन एंड सिंपल नो. ये आपको लिखना है. द फर्स्ट पार्ट, तो मतलब ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, पैरा 1. पैरा 2 में अपने इसको आंसर करना है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट वेदर if discovery has been made, can such a statement be used as a confessional statement against the accused? The simple answer to this is no, because अब आप बोलेंगे कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन अब जो आपको आंसर लिखना है वो तो आप इंग्लिश में ही लिख रहे होंगे ना, तो दैट इज आई एम जस्ट स्पीकिंग इट आउट इन इंग्लिश, बट मैं एक्सप्लेन उसको हिंदी में भी साथ साथ में कर रहा हूँ. Because only that information is relevant which shows accused persons with respect to the item slash place, and second, place from where the thing is discovered. Only these two things are relevant. ठीक है, सिर्फ ये दोनों चीजें रेलेवेंट है, बाकी कुछ भी रेलेवेंट नहीं है. नो अदर स्टेटमेंट इज रेलेवेंट. ये हो गया पैराग्राफ 2 ऑफ आवर आंसर. अब इसको आप समझने के लिए ये समझिए कि कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमें समझ में आ गया था कि राधेश्याम ने बताया कि चाकू उधर है, तो वो वाला जो पार्ट है वो रेलेवेंट है. लेकिन राधेश्याम ने ये बोला कि मैंने मोहन को मारा है, ये रेलेवेंट नहीं है. क्योंकि हो सकता है कि राधेश्याम ने पुलिस को तो ये बताया हो कि मैंने किसी को मारते हुए देखा और मुझे पता है कि वो चाकू उसने उधर गिरा दिया. ठीक है, ये स्टेटमेंट राधेश्याम ने पुलिस को दी हो सकती है, लेकिन पुलिस से क्या रिकॉर्ड कर ले उसको, पुलिस कह दे कि हमें तो राधेश्याम ने बताया कि राधेश्याम ने खुद ने ये कत्ल किया है. ठीक है, तो मतलब पुलिस कुछ भी आपके मतलब can put any word into your mouth, and that is why the police is untrustworthy as per the provisions of the Evidence Act and the CRPC. लेकिन इन सब चीजों में क्या कंफर्म हो रही है ये बात कि जो चाकू है वो कहां से मिला, जहां पे राधेश्याम ने पॉइंट किया. तो और इस सिचुएशन में सिर्फ दो बातें रेलेवेंट होंगी कि वन, राधेश्याम न्यू अबाउट द weapon and its place. Weapon was actually discovered from it. Only this part is relevant. अगर राधेश्याम ने ये भी कहा कि मैंने मर्डर किया है और मर्डर का चाकू उधर गिरा दिया, फिर भी सिर्फ जो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी वो ये होगी कि चाकू उधर गिर गया है, चाकू उधर है. दैट वुड बी द ओनली रेलेवेंट पार्ट. तो न्यू अबाउट द वेपन एंड प्लेस का क्या इसका मतलब वो बनता है अब रेलेवेंस, वो ये है कि एक तो RS Radhesham was present at the place. B, Radhesham may be involved or an eyewitness. ये दोनों चीजें हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को प्रूव करने के लिए आप समझ के देखिए, प्रोसिक्यूशन बोलेगी कि राधेश्याम ने मर्डर किया है. ठीक है, डिफेंस बोलेगा कि नहीं, राधेश्याम तो सिर्फ आई विटनेस है. अगर हम ये कह देते कि राधेश्याम ने मर्डर किया, राधेश्याम ने कत्ल किया है और वो चाकू उधर गिरा हुआ है, तो हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन को फेवर कर रहे हैं. आई विटनेस वाला जो पॉइंट है वो राधेश्याम बना ही ना पाता. लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ले रहे हैं कि राधेश्याम को पता था चाकू किधर गिरा है, तो नाउ राधेश्याम कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन आई विटनेस. वो तो अब डिफेंस को प्रूव करना पड़ेगा कि राधेश्याम इज एन आई विटनेस, बट एटलीस्ट कन्फेशनल पार्ट को ना इंक्लूड करके यू आर गिविंग राधेश्याम दैट अपॉर्चुनिटी टू डू इट, राइट. So in para 2, what we essentially discussed then was no other statement is relevant, right?
The scope of section 27 is limited. Only these two statements are made relevant by it, right? इसको आप और एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए आप ये कह सकते हैं, since 27 is an exception to the general principle contained within 25 and 26, it cannot be broadly interpreted. ठीक है, अब इसका कोरोलरी क्या है, इसका एक और मैं आपको इसके साथ एक जूरिस्प्रूडेंस रूल बता देता हूं. जो जनरल रूल है कोई भी चीज का, दैट कैन ऑलवेज बी ब्रॉड बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, जिसने भी 25 26 पढ़ा है उसको पता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड कस्टडी को स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमन उपाध्याय में बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है. कस्टडी एज अ कॉन्सेप्ट को कोर्ट एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन जो एक्सेप्शन होती है ना, दैट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड. एक्सेप्शन हुई 27 में सिर्फ ये वाली दो सिचुएशन दी हुई हैं. अगर आप उस सेक्शन को पढ़ के देखेंगे तो किसी भी सिनेरियो में सेक्शन 27 कैन नॉट गो बियॉन्ड दीज टू स्टेटमेंट्स, राइट? आई होप दैट इज क्लियर. तो पैरा 2 में यू कवर दिस, दैट only two things are made relevant, no other statement is relevant, is an exception, it cannot be broadly interpreted. Therefore, confession made by an accused, confessional statement made by the accused will not be relevant. Section 27 statement cannot be used as a confessional statement against the accused. That is para number 2. Now, para number 3 is the second part of the question was use against accused during trial. ठीक है, the exact word was and can it be also used against the accused during the trial. अब इसका क्या वो है, इसका आंसर है yes. The two statements that are relevant, that have been made relevant, can be used against the accused. इसमें अगर आपको इस पे को और थोड़ा डिटेल करना है तो इसको आप मतलब एक तो डॉक्ट्रिन का वो दे सकते हैं, डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्ट एंड रीजन दे सकते हैं, और दूसरी जो चीज है वो आप ये कर सकते हैं कि डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ. डिस्कवरी का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज जो पुलिस को पहले पता नहीं थी, अगर पुलिस को पहले पता थी चीज या पुलिस को आसानी से पता चल सकती थी चीज, तो दैट थिंग कैन नॉट बी सेड टू बी डिस्कवर्ड, राइट? डिस्कवरी तभी है जो ऐसी चीज है, फाइंडिंग समथिंग नॉट नोन बिफोर. तो दिस बिकम्स पैराग्राफ 3, right? Finding something not known before is the meaning of discovery, and if there is discovery then only the statement can be made relevant. इसके लिए बहुत सारे केसेस यूज कर सकते हैं. डिस्कवरी के लिए आई यूजुअली यूज्ड नरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बट लेट मी टेल यू अनदर थिंग. जो केस लॉ है ना, वो आपको जो नाम इजीली याद हो जाए वो आप कर लीजिए, ठीक है? आपको जो भी नाम इजीली याद हो जाए, जैसे मुझे दियोमन उपाध्याय वाला नाम बड़ी इजीली रिमेंबर हो जाता था, तो मैंने उसको काफी जगह पे यूज किया. मतलब उसमें जो भी प्रिंसिपल्स थे ना, वो मैंने एक केस से 4-5 मतलब सेक्शंस वो किए हुए थे याद. तो जब भी उन क्वेश्चंस पे, उन सेक्शन पे कुछ आता था, आई यूज्ड टू मेंशन इट. तो यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट कि यार ऐसा लैंडमार्क तो बोलना ही पड़ेगा. देयर इज नो कंपल्शन ऑफ रियली यूजिंग एनी पर्टिकुलर केस लॉ. आपको मतलब जैसे 27 के लिए आई गिव यू एन एग्जांपल. जो ये वाली स्टेटमेंट थी ना, इसमें आई वुड हैव रिटन बॉबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. आप ये आपने में से किसी ने सुना भी नहीं होगा केस, क्योंकि ये एक 2023 का केस है. और मैं लिख के भी आता, बॉबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट 2023, क्योंकि मैंने तभी पढ़ाई की थी, तो मतलब मुझे ये नाम बहुत इजी लगा.
बोले यार 27 में बॉबी से आसान क्या नाम हो सकता है, और आप देखेंगे बॉबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये सारी बातें दी हुई हैं, क्योंकि सारे केस में जब भी अप्लाई करते हैं तो दे टॉक अबाउट द थ्योरी, राइट। तो आपको तो बस ये दिखाना है कि आपको एक नाम पता है, इट डजंट नीड टू बी एनी पर्टिकुलर नेम, कोई भी नाम हो सकता है, जस्ट इंश्योर कि उस नाम सही है और आपको याद ज्यादा देर तक रहता है। ये तो हो गया। और पैराग्राफ 4 में, सॉरी, पैरा 4 में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, या क्या ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं आपके पास पैराग्राफ 4 के लिए जगह बचेगी अगर आपने पैरा 1 2 3 प्रॉपर्ली लिख दिए तो। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि क्योंकि हमें बेसिक आइडिया है सेक्शन 27 का सबको, तो हम आंसर तो लिख देते हैं अच्छा, लेकिन वो बात पे आते आते वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और हमारा टाइम कट जाता। तो होता क्या है, शुरू में हम बहुत सारा जो भी हमें समझ में आ रहा होता है हम लिख देते हैं, उसके बाद हम एक्चुअली आंसर को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तब हम रियलाइज करते हैं यार कि टाइम भी कम रह गया है। तो जब टाइम कम रह गया होता है तो जो हमारा आंसर हमने एक्चुअल लिखना होता है उस पर तो हम कम टाइम देते हैं, जो बाकी का जो हमें मम्बो जम्बो पता है रिलेटेड टू दैट सेक्शन उसको हम ज्यादा एम्फसाइज कर देते हैं। सो दैट वे हमारे मार्क्स तभी कम रह जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपने पैरा 1 2 4 लिख दिया तो अब बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसमें आपने क्या लिखना है, डिस्कस द admissibility of the statement and the extent to which they are relevant, राइट। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी, अब हमने एनालाइज करना है अप्लाइंग दिस, सॉरी, तो इसको क्या सिंपली लिखना है, अप्लाइंग दिस टू द टू स्टेटमेंट्स we find that, sorry, we find that statement 1 which says I have murdered A with axe, I have hidden axe in my haystack, I will produce it. अभी हमने नोटिस की बात कि जो भी कन्फेशनल पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है दैट कैन नेवर बी यूज्ड, राइट। उसका मतलब क्या सिंपल हुआ कि ये जो पार्ट है आई हैव मर्डर्ड ए विद माय एक्स कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल। और यही आप आंसर में लिख कर आएंगे कि because the first part of the statement I have murdered A with my axe is confessional in nature and does not lead to any discovery, it is not relevant। ठीक है, अब उसके बाद आप बाकी की स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे। I have hidden axe in my haystack, axe in my haystack, I will produce it की कोई रेलेवेंस खास है नहीं। रेलेवेंस क्या है कि मैं उसको प्रोड्यूस कर दूंगा, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन जो बात थी, जो दो चीजें हम कर सकते थे, accused person's knowledge with respect to the item and place from where the thing is discovered। तो इस वाली स्टेटमेंट में क्या चीज रेलेवेंट हुई कि ए को पता था, ए न्यू दैट एक्स is in the haystack, and if axe is indeed discovered from the haystack, then this would be relevant and this would be relevant. So the only part that is relevant is the one that has been highlighted. Axe is in my haystack. This is the only part of the statement which is relevant under section 27. Statement 2. Statement 2 is I would produce the axe used for murder and also blood-stained clothes.
अब इसमें प्राइमा फेसी कोई ज्यादा चीज रेलेवेंट है नहीं, राइट, क्योंकि वो ये नहीं बता रहा कि कहाँ पे है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली समझ के देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्स कहाँ पे है, और मैं अपने साथ में खून से रंगे हुए कपड़े भी दिखाता हूँ, है ना, खून से सने हुए कपड़े भी दिखाता हूँ। तो ये स्टेटमेंट उसने दी पुलिस को, तो दैट स्टेटमेंट पर से इज नॉट रेलेवेंट, बट इफ A leads the police to the axe and blood-stained clothes, then it can become relevant only if axe and clothes are being discovered for the first time. अगर पुलिस को पहले से ही पता था कि कहाँ है चीजें, तो वो डिस्कवरी नहीं हुई, राइट। तो जब कोई चीज पहली बार डिस्कवर हो रही है, तभी उसको सेक्शन 27 के अंडर वो वाली पर्टिकुलर स्टेटमेंट आएगी। विदाउट डिस्कवरी, without the police finding out something new, it cannot be said to have discovered anything, right? That is very important, that is key. So this would be my short and sweet answer on this particular question. कि आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उसके बाद आप करेंगे कि हाउ व्हाट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 27। पैरा 3 में आप डायरेक्टली आंसर को क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं रेलेवेंट, और पैरा 4 में आप ये बताएंगे कि डिस्कवरी का क्या मीनिंग है और कितना ज्यादा पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एक्चुअली एडमिसिबल। जब आपने ये कर लिया तो गेटिंग टू द स्टेटमेंट्स बिकम्स वेरी इजी। तब उसमें आपने बस ये अप्लाई करना है कि हैविंग डिस्कस्ड these principles in the previous section, let us now apply them to the statements before us, और आप फिर उनको अप्लाई करके बताइए कि only acts in my heat stack is relevant and I will produce the acts used for murder and also bloodstained clothes। में से relevant चीज क्या हुई? A is knowledge of acts, clothes, location plus discovery of such things, that is it। आपका आंसर ही खत्म हो गया। अगर आप इसमें कुछ भी और डालने की कोशिश करेंगे तो आप ये 10 मार्क्स में नहीं लिख पाएंगे, इज माय अंडरस्टैंडिंग, राइट। इवन तो हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारी चीजें जो हमें आती हैं वो डालनी भी हैं। सो दैट इज, इतना कुछ है पॉसिबल यार, आप छोटा करके तो देखो। Why is it not stopping share? Just give me 1 second. Okay, so any questions? It provides so David कि जो डिस्कवरी है वो प्रेजेंस ऑफ विटनेस में हो, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी, बिकॉज एट द सेम टाइम जो, यार एक सेकेंड, व्हाई इज दिस नॉट, it's very glitchy। सॉरी, माय बैड, दिस सिस्टम में आज कोई प्रॉब्लम आई हुई है। तो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। मनप्रीत, आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा, मतलब डू यू थिंक देयर वाज मोर क्लैरिटी ऑफ रीजनिंग एंड मोर क्लैरिटी ऑफ द आंसर हियर? आपने सब कुछ सही बोला, लेकिन अगर हम सब कुछ लिखने की कोशिश करेंगे जो हम जानते हैं, तो हम कभी आंसर खत्म ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो आप एक बार कंसिडर करके देखिए। बाकी तो सिंपल सी ये बात है कि आंसर सारे किए जा सकते हैं, आंसर को बस हमें कंटेक्चुअलाइज सही तरीके से करना है, और हमें एक ऐसी चीज को आंसर करना है जो एक्चुअली पूछी गई हो ना। आंसर आप वो कीजिए जो पूछा गया है, ना कि वो जो आपको पता है, एसेंशियली।
That is the मूल mantra of today's class. ये तो मैं लिख ही लेता हूँ. This is such a nice statement. Okay, this would be in my. तो इसका क्या टेनेट बना ये कि answer what has been asked. Not what you know. ठीक है, so I will end this session with this statement now. कल के लिए भी आई थिंक आप लोग ज्यादा क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्टेड हैं, so I'll take more criminal law classes going forward. But I personally think कि criminal law सब बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो उसमें मेरा वैल्यू एड थोड़ा सा कम हो जाता है. सिविल लॉ में आई एम एबल टू हेल्प मोर, बट डेफिनेटली क्रिमिनल लॉ इज ऑलवेज इजियर फॉर मी टू आल्सो टेक, राइट. तो मैं मतलब डेफिनेटली वो भी दूंगा. इफ यू एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू टुडेज क्लास, लेट मी नो. आई एम स्टिल लुकिंग टू हियर फ्रॉम मनप्रीत, क्योंकि मतलब उन्होंने मुझे बड़ी काइंडली आंसर दिया था. मतलब आई वुड वांट टू नो कि अगर उनको इफ ही गॉट टू फाइंड आउट एनीथिंग न्यू टुडे. ठीक है, this would be the broader format of our session going forward, right. So that आपको मतलब पता चल सके, मतलब आप लोग सही कह रहे थे कि मतलब I also need to share how I will be answering those questions, और मतलब that can happen more if I were just to share, if I were just to show you how I would be answering any particular question, right. मैं यार teach नहीं कर सकता. I'm not like I don't want to teach, one, and second I can't really teach also. I can only mentor you, right. So that is what my intention in these sessions is. But मुझे लग रहा है कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो तो मैं आपको एक तरह से पढ़ा ही रहा हूँ, so that way it's helpful, right. Any relevant maxim आप ढूंढिए. If you find something, you please let me know also. You put it on the Telegram group if you find something. Yeah, you should quote latest judgments. But मतलब अब ये समझने की कोशिश कीजिए, मतलब हम कई बार जो अनइम्पोर्टेंट चीज है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर द इम्पोर्टेंट चीज. ठीक है, एग्जामिनर आपके अब पूरे आंसर पढ़ रहे हैं, वो ये तो है नहीं कि आपके सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देख रहे हैं कि यार इसने 3 केस लिखे हैं तो उसको 5 में से 3 मार्क्स तो देने ही पड़ेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने आंसर को अच्छी तरह से लिखा है और आपने अगर साथ में जहां पे फिट बैठ रहा था एक भी केस लिख दिया तो दैट इज मोर देन इनफ. आपको 3 की जगह 3.5 मार्क्स भी मिल जाएंगे. एसके राम जी, आर यू जॉइन सर्विस? आई हैवंट येट. अभी तो ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आया है, तो मतलब जब आएगा तो आई कांट, उसके बाद आई कांट रियली डू एनीथिंग एल्स. तो उसके बाद आई विल हैव टू स्टॉप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल आल्सो हैव टू स्टॉप टेकिंग सेशंस. तो जब तक वो नहीं आता है तब तक आई कैन यू नो really go ahead with these classes and also with my practice. Thank you all, right. Thank you so much for joining in. Let's meet tomorrow.